I'm excited like last year. I'm really excited because first of all it's a beautiful place for me, that's a holiday as well. And it's a great experience to be amongst the people who are so well known in their industries, talking about choreography, talking about movies, direction, actors. There's so much to see, so much to gain knowledge from. It's not only about walking the red carpet, but besides that, just being with people, when you mingle around, when you go to their lounges, and you just get the wisdom of intelligence of this industry, and you can go deeper into it. I've been called as an actress. My husband has been called as a choreographer. So for us, it's a better and deeper knowledge in our industries, and it always helps somewhere. And then you expose yourself to other people, they also come to know about you. I feel Bollywood is received very well because there's always a distinction of Bollywood, though people come from all over the world, but when it comes to Bollywood, there's a specification, this is Bollywood. And they always appreciate the great looks we have in the industry, and the songs, the dances, and it has a distinction from their movies. It's not just the same. I'm wearing something, great creation from Rohit Verma, and it's a gown, it's a maroon and gold gown. I tried few outfits and then chose that. It's how you take it. I won't say it's a compulsion or it's a tension or something. It's just a play which you enjoy because you're representing India. So might as well look a little distinct like how the Bollywood is. And you're showcasing your own self, but as well as your country. So there's a responsibility on you. With Rohit, because I've been working with him for so long, he knows my style, I know his style, so we gel together well. That's why my first choice was to think about him, because there's no extra tension about discussing and then going and then fittings, because he already exactly knows what will look good on my body. He knows my body structure. No, I just, as a whole, like Cannes Festival, there's no particular person I'm looking for. Thank you. बस तैयारी तो यही है कि वहाँ पे जाएंगे, हमारे हिंदुस्तान के डांसेस के बारे में, डांस के बारे में बात करेंगे, एंड लोगों को बताएंगे दैट बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट सॉन्ग एंड डांस. बिल्कुल, आई थिंक हॉलीवुड की पिक्चरों में और म्यूज़िक वीडियोस में आजकल बहुत बॉलीवुड से इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं. स्पेशली लेडी गागा का आप देखेंगे वीडियोस, तो दे आर ऑल इंस्पायर्ड बॉलीवुड. आई वुड से बॉलीवुड इज़ एवरीवेयर. और कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रेशन, जिससे लास्ट ईयर 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड मनाया गया था, और इस साल भी काफ़ी बॉलीवुड छाएगा. तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट वन गेट्स इंस्पायर्ड बाय द अदर पर्सन डेफिनेटली. वेल, प्रेपरेशन के लिए तो डेफिनेटली डिज़ाइनर से बात करनी पड़ती है कि व्हाट वन वांट्स टू वेयर. मेरे डिज़ाइनर जो हैं वो दीपक शाह जी हैं, फॉर मोर मिस्चिफ, एंड ही इज़ मेकिंग ऑल इंडियन क्लोथ्स फॉर मी दिस टाइम. एंड आई थॉट कि लास्ट टाइम पूरे टक्सीडोज पहने थे, तो इस बार कुछ और अलग किया जाए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल इंडियन वेयर फॉर मी. डेफिनेटली आई थिंक, क्योंकि जो इंडियन का ड्रेसिंग स्टाइल है, इंडियन का ड्रेसिंग स्टाइल है, वो बहुत अलग होता है. हमारे कपड़े अलग होते हैं, हमारे फैब्रिक अलग होते हैं, हमारी एम्ब्रॉयडरीज अलग होती हैं, हमारे स्टाइल्स अलग होते हैं. सो पीपल वेट फॉर इट. एंड आई थिंक हॉलीवुड के काफ़ी लोग भी जो हैं वो इंडियन डिज़ाइंस पहनते हैं, इंडियन डिज़ाइनर्स को के डिज़ाइंस पहनते हैं. सो दे लुक फॉरवर्ड कि इंडियंस क्या पहन के आने वाले हैं. एंड आई होप The दिस West is टाइम a fusion between the Western and Indian, and only Indians actually carry it well. Westerns try to get that from here, but what we do with the Western as well as Indian mingling together is the best. वेल, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज उनके हिसाब से बॉलीवुड फिल्म्स आर ऑल म्यूजिकल्स. तो जैसे ही कोरियोग्राफर मैं बोलता हूँ कि आई एम अ कोरियोग्राफर, दे आर लाइक, ओह वाओ, यू आर द वन हू कोरियोग्राफ्स ऑल द वंडरफुल डांस सीक्वेंसेस. सो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज हमारी फिल्में जो हैं वो नाच गाने से ही रिकग्नाइज होती हैं, और वी आर द वंस बिहाइंड इट. सो आई थिंक इट फील्स ब्यूटीफुल एंड इट फील्स वंडरफुल टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स कि भी हम लोग कोरियोग्राफर्स हैं, हम डांस करते हैं, डांस सिखाते हैं, और जो आप देखते हैं, इतने इंप्रेस होते हैं बॉलीवुड फिल्म से, वो सब कहीं ना कहीं हमारा ही काम होता है. ऐसे बहुत सारे हैं. आई थिंक पेनेलोपी क्रूज जो है वो बहुत अच्छे डांसर हैं. आई थिंक शी विल बी एबल टू डू अ ग्रेट जॉब इन बॉलीवुड डांसिंग एज वेल. आई होप आई विल बी एबल टू डू सम बॉलीवुड मूव्स विद हर. वेल, जैसी क्या बोलूँ कि जितना बोलूँ तारीफ करूँ उतना कम है. आई थिंक सो
ये परफेक्ट है 10 आउट ऑफ 10, तो इनको इतना तैयार करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता लाइक अदर ऑफ द बॉलीवुड एक्ट्रेस, एंड जो उनको देता हूँ उनको पर सूट करता है। तो आई थिंक सो बहुत ही कम हिंदुस्तान में कितने की मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो इतने परफेक्ट शेप में हैं, तो ये इनका योगा का कमाल है कि हमेशा लाइक कभी भी क्या कहते हैं कि इतने वेल शेप रहती हैं। तो डेफिनेटली इस बार हम लोगों ने इनके लिए 3 लुक्स प्लान किए हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव डिजाइन द क्लोथ्स। शी विल स्पोर्टिंग मोर ऑफ द ऑल 3 गाउन्स, but all 3 have got different concepts. Well, मैंने जैसी दीदी को पहला गाउन एक maroon and gold में दिया है जिसका पूरा बहुत ज़्यादा ड्रेप्स हैं उसके ऊपर, शैंटली लेस और टोटली इंडियन एम्ब्रॉयडरीज का उसके ऊपर काम है। और सेकंड हमने उनको दिया है वाइट कलर गाउन, बिकॉज वाइट बहुत एक ऐसा कलर है, इट्स पीस एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स वाओ ना, फिश कट है, उसके ऊपर ड्रेप है, उस पर ये इंडियन तरह का एक्सेसरीज का से उनको एक्सरसाइज करेंगी। और थर्ड मैंने उनको बहुत ही वेस्टर्न पेप्लम स्टाइल ग्रीन कलर दिया है। तो आई थिंक ये 3 डिफरेंट, पर तीनों डिफरेंट के कट्स और एम्ब्रॉयडरीज बहुत डिफरेंट हैं। 18 साल हो गए जैसे दीदी के साथ काम करते हुए, तो एटलीस्ट इतना तो मेरे को पता है उनकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स क्या हैं। पर कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है कि रोहित दिस विल नॉट लुक गुड, बट लेटर व्हेन शी वेयर दैट शी सेज नो इट रियली लुक नाइस है ना। तो आई थिंक सो वो इंटरफेरेंस ज़्यादा करती नहीं है किसी भी काम को लेके। बस हाँ, कभी कभी फैशन शो में कहते हैं रोहित तुम लहंगे बहुत हैवी भी पहना देते हो, तो हम लोग कहते हैं पैकेट भी तो हैवी लेके जाते हैं। So it's jokes apart, but yeah, she is उनको कुछ भी दे दो, she carries a very great. मैं यहाँ खड़ी हूँ, उनको अच्छा बोलना ही होगा मेरे को। कितने सारे हैं, of course एंजेलिना जोली को तैयार करना चाहूँगा। I think she's one of my favorite. There's Rihanna I love a lot, so I would love to dress her up. पर बहुत सारे मैंने देखा है, जब भी मैं कांस आई वॉज डूइंग, पहले मैं इतना कांस को फॉलो करता नहीं था। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, जब इतना बड़ा सुर्खियों में हो जाती है कि कौन क्या पहनने वाला है, कितने फैशन फोपा हो जाते हैं। मैं एक शो करता था स्टाइल सिर्फ जूम पे, तो मेरे को एक पूरा एपिसोड बोला गया था किसने किसने फैशन फोपा किया। हालांकि आई नो, क्योंकि मेरे को पता है एक लंदन से मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑल्सो इज द फैशन पुलिस, और वो इस बार कांस में वो रेड कार्पेट कर रहा है। आई होप मैं जिनको तैयार कर रहा हूँ कोई फैशन फोपा ना हो जाए, तो आई होप आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर। तो डेफिनेटली कि कहते हैं कि ये इतने बड़े इवेंट के ऊपर पूरे दुनिया की आंखें टिक जाती हैं।